So hello guys and welcome to another video of DC East Universe। बहुत टाइम बाद आए हैं और शौविक भी हमारे साथ है। हम दोनों मिलके आए हैं यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर के ओकेशन पे स्पेशली लोगों को विश करने के लिए कि सबका न्यू ईयर और क्रिसमस सही तरीके से जाए, अच्छी तरीके से जाए और न्यू ईयर का शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं हम लोग। तो मैं तो पहले शौविक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा क्योंकि भाई हम लोगों का बहुत सक्सेसफुल हो रहा है जीवन में। ही इज बिल्डिंग अप हिज ओन एम्पायर एज वी कैन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस शौविक ये सब के लिए। यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड 2023 की शुभकामनाएं। थैंक यू बट द प्रॉब्लम इज कि अभी बहुत टाइम कम चल रहा है इसलिए can't do anything right now. I can't do the podcast. I can't review stuff. जुदियो मतलब सॉरी बंगाली आ गया था बीच में, लेकिन एक्चुअली कि मैं बहुत दिन बंगाली में बात नहीं किया ना, तो इसलिए आफ्टर स्टेइंग for long period out of Kolkata, it's like when we are talking finally the Bengali is coming out of me. But the problem is कि now जब we are not doing the stuffs and not able to watching all the series and podcast and everything, then it feels very bad as a DC fan. But in the recent times, we don't have lots of DC item to watch or cover, so that is also the case. But there is a Doom Patrol going on, so guys, I will request you guys to watch the Doom Patrol season 4. And I wish you are already watching and enjoying it. I have still not started it. I will binge it because I'm not getting the time to watch it every week on a weekly basis. And then like uh, I have just finished Stargirl that day, 2 days before. I have watched the last 5 or 6 episodes together. I just binged it. That is the reason I thought I should have done a final episodic review or the full series review, because the series has already been wrapped up finally and it is being officially over. So I just want to do a review there, but I still haven't figured out when to do it because there is a lack of time very much. But but still, for you guys only and for all our subscribers, the 740 and 45 people, maybe constant support, for their constant support and love. We are very lucky and we are feeling very happy that we can be back again in this time of Christmas and New Year, during this festival holiday time, where there are some bad news and also some good news, some hopes of new upcoming future, and some heartbreaking news also from the past. So yeah, that is how the year went also for us, and I guess for Sirup also. And this is life actually. Like 2022 has presented us, we have seen a lot and we have dealt with lot, but still there is a lot of hope to conquer in the future. So that is the thing which is very important, to always be hopeful in the life and to go forward, to move on. That is the main issue in life, and that is what is actually happening with DC universe also. We all know that DC studio has been formed and it is being led by James Gunn and Peter Safran. The board executives have done their homework and they have created a slate for next 10 years, and they have presented the plan to David Zaslav, and now they have made some significant changes to their plans in the slate, and that is what we are going to discuss here in this video and this live kind of a stream, because we are doing this for as a fan interaction. But sorry, we can't be live now because it's not like because of some background issue, some technical issue, we are not going live. But yeah, you can definitely connect with us whenever we are watching the video, wherever we are watching the video. If you are there from any part of the world, just hit the like option, subscribe the channel, and comment in the comment section Merry Christmas, Happy New Year, and hashtag DC forever. That will definitely encourage us to do more videos like this again in the future, and to connect with you guys mainly in the live stream, maybe someday in the future, in next year maybe, when there are huge amount of chunks of announcement coming out. So yeah, that is the thing which I was telling. James Gunn has given his own first slate to David Zaslav, and they are going to announce the project from 1st of January, I guess, or maybe from the first week of January, or maybe in the January month itself, because James Gunn has already confirmed that
on next year first month, that is January, they will be confirming and they will be giving us the actual um, first phase movies slate of DCU. They have now structured the full universe like the old Marvel structure. There will be phases like phase 1, phase 2, phase 3, like that only. But this phase will not be a solo phase like the Marvel ones. It will be a multiversal phase where in one phase we can see a story of one Earth or maybe one universe. And then in the next phase we can see the time traveling heroes movie and all the other universe stuff also. So that is the one hopeful thing which I am very much looking forward. But जो मेन चीज है वो है कि जो हेनरी केविल जो ऑलरेडी ब्लैक एडम में आ चुका है और कैमियो किया है और उसने ही इज बैक एंड ही वाज बैक एंड एवरीवन वाज just very excited and the internet broke away and Shiruk was very excited himself because प्लस Shiruk प्लस was और एक न्यूज भी आया था, न्यूज नहीं एक्चुअली एक वीडियो भी ड्रॉप हुआ था बाय हेनरी केविन हिमसेल्फ कि वो ही विल बी बैक इन द थिएटर्स इन द बिग स्क्रीन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर हम सभी को पता है कि आफ्टर द डीसीयू फुल्ली रीजेनरेटेड वी कैन से वहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस आए हैं एंड वी गॉट टू नो दैट हेनरी केविल, गैल गडॉट, दीज पीपल विल नॉट बी गोइंग to be a part of DC in the near future, of course. लेकिन yeah, that's what we need to do because मैं यहाँ पर आया था इस वीडियो को करने के लिए. कुछ कुछ क्वेश्चंस भी था मेरे मतलब मेरे दिल में, मेरे मन में, और कुछ कुछ चीज बोलना भी चाहता था. तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया था शौविक को पूछने के लिए, मगर मैं शौविक को पहले बोल लेने दूंगा. वन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू फील कि जेम्स गन आके ये डिफरेंट चेंजेस कर रहे हैं. तो आई गेस शौविक इज सेइंग द आंसर हिमसेल्फ, सो आई वुड नॉट इंटरप्ट. शौविक प्लीज. Now, I just want to say कि yeah, definitely Henry Cavill himself has announced कि वो लौट रहा है और वो लौट चुका है. He has also left the show Witcher just for being the Superman in this universe, but unfortunately things didn't work out. Actually, James Gunn is planning to create a new rebooted universe. क्योंकि जो मूवी आने वाला है फ्लैश उसमें हम लोग देखेंगे. There will be Henry Cavill in the Flash movie. That's for sure. I can guarantee you that. ये वीडियो आज अगर ये पार्ट जो है ये पार्ट को आप लोग रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं कि ताकि अगर ये पूरा ना हो तो बाद में आके आप लोग मेरे को बोल सकते हैं. लेकिन लेट मी बी क्लियर ऑफ दिस कि हेनरी केविल विल बी इन फ्लैश मूवी, गैल गैडोट विल बी इन फ्लैश मूवी एंड also there are other surprises which are still to be uncovered, unrevealed, and Michael Keaton will be also in the Flash movie and Ben Affleck तो definitely है. तो ये सब होने वाले हैं फ्लैश मूवी में. तो लेकिन at the end of the Flash movie जो होने वाला है कि there will be an incident where the Flash will create a new timeline and he will reboot the universe, and in that timeline we will see कि there are different actors playing the same roles. like कि हेनरी केविल की जगह कोई और आ जाएगा जो सुपरमैन होगा, फिर शायद बेन एफ्लेक की जगह रॉबर्ट पैटिंसन हो जाए, वो बैटमैन के रूप में इस यूनिवर्स में आ जाए द मेन कंटिन्यूटी में. और हम लोग देख सकते हैं कि शायद गैल गैडोट भी शायद अभी नहीं लौटेगा क्योंकि जो गैल गैडोट का मूवी था वंडर वुमन 3 वो जो पैटी जेंकिंस लिखने वाले थे, डायरेक्शन भी शुरू होने वाला था इस अगस्त से शायद इस ईयर से शुरू होने वाला था. अगले ईयर तक अगस्त तक शायद मूवी हो भी जाता रैप अप, लेकिन वो भी मूवी नहीं आने वाला है अभी क्योंकि जेम्स गन का जो एक्चुअल प्लान है उसके साथ पैटी जेंकिंस ने मतलब क्या बोला उसको, she has not agreed with that plan, and due to their creative differences they have moved along, and Patty Jenkins has left from the movie and she has left and the movie is not in the making. But definitely there can be a Wonder Woman 3 starting Gal Gadot also, but maybe ये भी हो सकता है कि शायद Gal Gadot भी रिकास्ट हो जाए और शायद बेन एफ्लेक जो फ्लैश में दिखने वाले हैं वो भी शायद आफ्टर टाइमलाइन चेंज वो भी ना आ रहा है. शायद जो रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है द बैटमैन का वो आ जाए इन द मेन कंटिन्यूटी along with Joker, that is our Joker of Joaquin Phoenix, not of Jared Leto. तो ये सब होने का चांसेस है जो कि मेन मोटिव है जेम्स गन का, क्योंकि जेम्स गन पूरा क्लीन स्लेट कर रहा है. उसके बाद वो लोग फिर से एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे. as far as I know the story will be like कि James Gunn will do one thing that is already being done in animation universe. बेसिक एनिमेशन यूनिवर्स में जो हुआ था 2013 में विद द मूवी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, वही होने वाला है फ्लैश मूवी में. फ्लैश कुछ ऐसा करने वाला है क्योंकि फ्लैश पहली बात खुद जाएगा मल्टीवर्स में और उसके सामने ऐसा कोई विलेन और या ऐसा कोई मतलब बड़ा ये आ जाएगा मतलब थ्रेट, देयर विल बी अ थ्रेट लाइक दैट कि जिससे वो उभर नहीं पाएगा और उसको वो मतलब इतना खुद उससे तबाह हो जाएगा और वर्ल्ड में इतना सारा तबाही होगा और इतना हार्मफुल सब कुछ होगा कि उसको एट द एंड ही विल बी फोर्स टू जस्ट
create a new timeline and to erase the old one. दौड़ेगा in the timeline to create a new one like he has done all to actually to hold the three separated. उसने फिर से उस टाइम पे भी एक बार उसने टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन चेंज किया था, तो इस बार वो टाइमलाइन चेंज करेगा, लेकिन इस बार जो टाइम ट्रेवल करेगा वो टाइम ट्रेवल ज्यादा ही खराब मतलब ज्यादा हो जाएगा और रीसेट एवरीथिंग एंड देयर विल बी न्यू टाइमलाइन, जहाँ पे शायद जो फ्लैश का एक्टर है वो खुद रहेगा फ्लैश, उसके अलावा जितने भी एक्टर्स है शायद वो अपने रोल में रिकास्ट हो जाएंगे या स्वैप हो जाएगा। जैसे कि हेवी रूमर्स आ रहा है कि जेसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल प्ले करता है बन जाएगा लोबो। लोबो इज अ वेरी प्रोलिफिक विलेन, एक्चुअली अ बाउंटी हंटर और सुपर बिगेस्ट एनिमी है वो शायद उस रोल में जेम्स गन जेसन मोमोआ होता है, इसलिए वो रोल रिवर्सल हो जाएगा। एंड उसके लिए जो होगा कि एक्वामैन का भी जो मूवी है एक्वामैन की अगले साल विंटर में आने वाला है, वही लास्ट मूवी होगा एक्वामैन का, लेकिन उसके बाद वो मूवी भी मल्टीवर्सल मूवी होगा, सारे कैमियोस देखने को मिलेगा। वो किसका कैमियो होगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एज फार एज आई नो कि उसमें गैल गैडोट हो सकता है या फिर बेन एफ्लेक तो डेफिनेटली होगा एज फार एज आई नो। तो उस फ्लैश मूवी के बाद वो मूवी आएगा, उस मूवी में भी कुछ मतलब चीज मतलब कि है बैटमैन है, लेकिन फिर भी नया टाइमलाइन में कैसे जैसे मोमोआ लोगो बन गया और कैसे बेन एफ्लेक नहीं है और कोई बैटमैन है, तो ये सब इस पे डेफिनेटली दे विल बी डिस्कसिंग विद अस। एक्चुअली जो होगा वो कि जब नया टाइमलाइन क्रिएट होगा वो नया टाइमलाइन क्रिएट करके फ्लैश पहुंच जाएगा एक नया यूनिवर्स में, नया अर्थ में, नया सेक्शन ऑफ द मल्टीवर्स में, जिस मल्टीवर्स में सिर्फ फ्लैश ही होगा एक ऐसा एक्टर जो कि पुराने अर्थ से आने वाले हैं। बाकी जो नया पूरा डीसीयू तैयार होगा उसमें जो एक्टर्स होंगे सब नया होंगे। गैल गैडोट की जगह नया कोई वंडर वुमन आएगा, वंडर सुपरमैन की जगह कोई नया वंडर सुपरमैन आएगा हेनरी कैविल की जगह, फिर रॉबर्ट पैटिंसन शायद बैटमैन हो, जोकर जोकम फिनिक्स होगा, ऐसे ही शायद जेसन मोमोआ भी रिकास्ट होगा तो वो लोबो बन के आएगा, फिर बूस्टर गोल आने वाले हैं, और जैसे नया मूवी आ रहा है ब्लू बिटल भी उसी यूनिवर्स का पार्ट होगा, तो देयर विल बी एन यंग जस्टिस लीग टीम जो कि सब नया एक्टर्स के साथ क्रिएट होगा उस यूनिवर्स में, और वहां पे वो लोग पूरा ओरिजिन से शुरू करेगा। वहां पे ग्रीन लैंटर्न भी शायद आएंगे बाद में, जैसे कि बात चल रहा है, उसने बोला है जेम्स गन ने कि आई विल डेफिनेटली वर्किंग ऑन 2 or 3 प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन लैंटर्न, सुपरमैन यू यंग ओरिजिन एंड ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑफ बूस्टर गोल्ड विच इज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ ब्लू बिटल। तो क्योंकि ब्लू बिटल का मूवी ऑलरेडी आ रहा है, अनाउंस्ड हो चुका है अगस्त में 2023 में, तो आई थिंक द बूस्टर गोल्ड मूवी इज ऑल्सो कमिंग। एंड एज फार एज आई नो कि बूस्टर गोल्ड और डॉक्टर टेरिफिक ये दोनों ऐसे मेंबर्स है जस्टिस लीग के कि और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जो लोग सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल किया है और जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग स्टोरी जाता है, तो इन दोनों को लाने का यही मकसद है ताकि वो लोग फ्लैश को हेल्प कर सके अलॉन्ग विद डॉक्टर फेट। मुझे लगता है कि डॉक्टर फेट का भी एक नया ओरिजिन दिखाया जाएगा, जो मूवी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ब्लैक एडम में, जो पियर्स ब्रॉसनन को देख चुके हैं, पियर्स ब्रॉसनन हैव ऑलरेडी डाइड, तो आई डोंट थिंक पियर्स ब्रॉसनन विल रिप्राइज हिज रोल एज डॉक्टर फेट। देयर विल बी अ न्यू डॉक्टर फेट जिसको वो हेलमेट ऑफ नाबू जाके चूज करेगा, कोई एक ऐसे बंदे को चूज करेगा जो कि नया डॉक्टर फेट बनेगा। तो यही सब होने वाला है कि देयर विल बी 4 मल्टीवर्सल कैरेक्टर, फ्लैश, बूस्टर गोल्ड, मिस्टर टेरिफिक एंड डॉक्टर फेट, एक एक मैजिकल मल्टीवर्स कैरेक्टर और बाकी 3 मल्टीवर्सल टाइम ट्रेवलिंग कैरेक्टर। तो ये तीनों चारों मिलके जो है जो मेन पूरा डीसी यूनिवर्स को कंट्रोल करेंगे, और फॉर द टाइम बिंग अगले 2-3 साल या 5 साल तक जस्टिस लीग में सिर्फ उन लोगों को ही देखने को मिलेगा जो लोग की नया मेंबर्स होंगे, जैसे कि नया टाइमलाइन का नया सुपर हीरो जो कि फ्रॉम द ओरिजिन वी विल सी देयर स्टोरी लाइक नया सुपरमैन, नया बैटमैन, नया फ्लैश, नया मे बी साइबॉर्ग एंड नया एवरीथिंग। सो दिस इज लाइक दैट। तो दिस इज द थिंग कि जो होने वाला है, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और कहीं ना कहीं दुख भी लग रहा है कि वी विल मिस बेन एफ्लेक एज बैटमैन, लेकिन बेन एफ्लेक ने खुद प्रॉमिस किया है कि जेम्स गन के साथ वो काम करेगा मे बी एज अ डायरेक्टर इन द न्यू डीसीयू, एंड देन वी विल मिस डेफिनेटली हेनरी कैविल एज द मैन ऑफ टुमारो। एंड गैल गैडोट अगर नहीं रहे तो वो तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा, फॉर मी गैल गैडोट वाज अ परफेक्ट कास्टिंग। स्नाइडर वर्स विल बी मिस्ड, बट दैट थिंग इज नॉट लाइक दैट कि मुझे लगता है कि मतलब स्नाइडर वर्स जा कहीं नहीं रहा है, लेकिन वो अभी फॉर द टाइमिंग दे विल नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ इन द मेन डीसीयू कंटिन्यूटी। द कंटिन्यूटी विल बी रिबूटेड विद द रिबूटेड यूनिवर्स, बट ऐसा कुछ होगा इन द नियर फ्यूचर, शायद 2026 से 27 को, जो कि होगा एक क्राइसिस इवेंट, द क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ जिसका नाम है फ्रॉम द कॉमिक बुक।
वो क्राइसिस सीजन में जब होगा तब हम लोग देख सकेंगे कि अलग अलग अर्थ में अलग अलग सुपर हीरो का टीम है, और वो हर एक अर्थ को एक साथ जोड़ने के लिए एक सुपर हीरो लगेगा, जो कि ये शायद चारों में से कोई भी हो सकता है। शायद फ्लैश हो, लेकिन या फिर चारों में से कोई भी हो सकता है, जिस लोगों का मैंने मोस्ट नाम लिया, प्रोबेबली बुस्टर फ्लैश गोल्ड, हो सकता है, मिस्टर, हाँ, बुस्टर क्योंकि टेरिफिक, क्योंकि आफ्टर आफ्टर फ्लैश। वी सी आफ्टर वी सी जो फ्लैश मूवी है, वो आफ्टर वी सी द फ्लैश मूवी वी विल गेट टू नो दैट फ्लैश इज द वन हु डिड ऑल द क्रिएशन, द न्यू क्रिएशन ऑफ टाइमलाइन, द न्यू या क्रिएशन ऑफ क्योंकि ये मल्टीवर्स। फ्लैश के लिए ये सब होगा, मतलब ये नया क्रिएशन, एग्जैक्टली, नया टाइमलाइन सो क्रिएट इट मेक फ्लैश के सेंस लिए होगा, दैट इसीलिए शायद फ्लैश, फ्लैश ही हाँ, होगा वो, फ्लैश ही होगा वो जो कि सब कुछ एक साथ में फिर रेक्टिफाई करने के लिए हर एक यूनिवर्स से यस, अलग इट अलग मेक सुपर सेंस, हीरो या, को या सबको लेके आएंगे एक साथ। और मुझे लगता है इन द जाइंट फ्यूचर, इन आफ्टर 10 years or maybe 8 years, in 2020, 2030 or maybe 2032, there will be a giant event like the Avengers Secret Wars or maybe the End Game. उससे पहले शायद एंड गेम जैसा कुछ हो जाए इसी यूनिवर्स में, जहां पे हम लोगों को जस्टिस लीग का मूवी देखने को मिलेगा, नया जस्टिस लीग फॉर्म होगा। लेकिन उसके बाद देयर विल बी अ ह्यूज इवेंट लाइक अ सीक्रेट वॉर्स ऑफ मार्वल्स एवेंजर्स, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइमलाइन का बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्सल सुपर हीरो आएंगे, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि मुझे लगता है पर्सनली Henry Cavill will also return from the Snyderverse. Ben Affleck will return and Gal Gadot will return. Everyone will return from the Snyderverse. And नया सुपर हीरो जो है, नया सुपरमैन जो है, नया बैटमैन जो है, वो सब भी आएंगे from that universe, the main DCU continuity. और ऐसे करके अलग अलग वर्जन ऑफ सेम कैरेक्टर, they will be coming together to fight the greater odds, that is none other than डार्क साइड। एंड मुझे लगता है कि ये क्राइसिस ऑफ इन्फिनिटी अर्थ का जो स्टोरी है, ये 2 पार्ट्स में बनेगा। पहले पार्ट में ये लोग दिखाएंगे गैलेक्टस को। गैलेक्टस जो है वो, सॉरी गैलेक्टस नहीं, सॉरी एंटी मॉनिटर, गैलेक्टस सॉरी मार्वल में है, सॉरी आई दैट माय मिस्टेक। वो रहेगा एंटी मॉनिटर। तो एंटी मॉनिटर जो है वो हर एक प्लेनेट को खा लेंगे, ऐसा ही उसका होता है, मतलब यही दैट इज हिज ओन ओरिजिन इन कॉमिक बुक। तो ये स्टोरी चल रहा है होगा कि हर एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और सुपर हीरो मिलके चाह रहे हैं अपने अपने अलग अलग यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को, अलग अलग टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और वो उसको हेल्प कर रहा है फ्लैश और बाकी सब टाइम ट्रेवलिंग सुपर हीरो। और साथ में जो मेन विलन होगा बिहाइंड एवरीथिंग, दैट विल बी डार्क साइड, जो कि एक्चुअली लास्ट में आने वाले हैं। इसके साथ में होके हमारा जितने भी विलेन्स है, हीरोज है, सब यूनाइटेड होके, अस यूनाइटेड बन के, दे विल फाइट एंड दे विल प्रोटेक्ट द होल, not only their own universe but the whole timeline and whole um, multiverse. So that is the main motto I think of James Gunn. तो अगर ये काम कर जाए वेल, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। हाँ, और मुझे लगता है कि ये काम करेगा, क्योंकि आई हैव फेथ इन जेम्स गन। तो देखते हैं क्या होता है। तो दैट इज द ओनली थ्योरी विच वी आई हैव टू शेयर टुडे विथ यू। सो नाउ इट्स अप टू Shriru to वेल, give his own thoughts and in this video. हाँ, एब्सोल्युटली, वेल दैट्स अ ग्रेट थ्योरी एक्चुअली। मैंने उतना सोचा नहीं, मगर एज ही वाज सेइंग मुझे लग रहा था अच्छा अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो या, वेल, जस्ट टू कीप इट इन And इसके पर्सपेक्टिव। पहले मैं तुम खत्म करो कि मैं हाँ, और एक चीज बोलना चाहता हूँ। जेम्स गन हैज क्लैरिफाइड इटसेल्फ हिमसेल्फ कि दे हैव प्लान्स फॉर एवरीवन हु इज नाउ बीइंग रिकास्टेड, एंड दे विल बी ब्रिंगिंग बैक एवरीवन, एंड दिस इज बीइंग क्लियर्ड बाय जेम्स गन यस, हिमसेल्फ। यस, बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे वेबसाइट ने वो गलत शलत रूमर्स न्यूज पोस्ट किया है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। जेम्स गन ने खुद भी ये बताया है कि ऑल दोस न्यूज आर नॉट 100% ट्रू। मे बी सम आर ट्रू बट नॉट 100% ट्रू। लेकिन मुझे एक बात लगता है पर्सनली कि जेम्स गन ने शायद हेनरी कैविल को बोला है कि फॉर द टाइम बिंग वी नीड अ यंग सुपरमैन इन अ न्यू टाइमलाइन एंड वी विल मेक द मूवी ऑफ हिज ओरिजिन। एंड ये बात शायद मुझे लगता है कि हेनरी कैविल को अच्छा नहीं लगा। दैट इज द रीजन हेनरी कैविल हैज हिमसेल्फ वर्कड आउट फ्रॉम द डीसी लॉर्ड, नॉट जेम्स गन। जेम्स गन ने हेनरी कैविल को नहीं निकाला है और नहीं रिकास्ट किया है। जेम्स गन आज भी चाहता है कि हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन इज द बेस्ट सुपरमैन एंड ही शुड कम बैक। लेकिन फॉर द टाइम बिंग व्हेन ही इज क्रिएटिंग एन मल्टीवर्स, ही न्यू समवन न्यू टू प्ले दैट रोल। दैट इज द रीजन कि हेनरी कैविल को ये बात ईगो में लगा कि when I am giving up all my shows and movies and I am just focusing on Superman only and this career, then how can you betray me like this? And why should I wait for 5 more years to get my movie Man of Steel 2? That is the reason he has posted such thing ki like I am quitting the Claw series over. My suit is up now forever. I am done with this. Thank you everyone. So this is just a tweet out of ego only. I think so. Out of हाँ, nostalgia maybe. Yeah. हाँ, वो हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। एंड जो शौविक ने कहा वो बहुत सही है कि यू नो, कंसेंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल मूवी और ऑन अ सिंगल फेस, फेस भी नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री दैट इज डीसी,
to leave all the industries like Witcher and all. It's a shock, to be honest, to for Henry Cavill to get कि हाँ यहाँ पर तुम्हें और वेट करना पड़ेगा, तो आउट ऑफ ईगो ही शायद उसने ये किया है। मगर एज शॉविक सेड कि जेम्स गन्स के जो प्लान है तो वो तो सब एक साथ एक टाइम पे आएंगे ही, एंड वी विल गेट टू सी मोर फ्रॉम द characters who are being recasted right now. So उससे वो तो हो गया, लेकिन जो शौविक ने कहा था अबाउट नियर अबाउट 8 to 9 years और 10 years लेटर, जब तक एक मैसिव इवेंट आएगा जैसे शौविक ने कहा, लाइक क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ, क्योंकि इन दैट मोमेंट, इन दैट टाइम वी विल गेट टू सी द होल ऑफ डार्क साइड, द होल एम्पायर ऑफ डार्क साइड फेसिंग द एम्पायर ऑफ सुपर हीरोज। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर और जस्ट टू कीप इट इन पर्सपेक्टिव, ये जो जैक स्नाइडर का जो हम लोग ने देखा था जस्टिस लीग, वो दैट फिल्म वाज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मल्टीपल और इन्फिनिट यूनिवर्सेस दैट आर देयर। तो Yeah, yeah, obviously मतलब ये दिखाया गया है कि already this superhero has faced or maybe have somewhat have tried to face and defeated Stephen Wolf in one universe, but now he is using Anti-Monitor to conquer all the universe. Dark side. Absolutely, absolutely. Yeah. तो that would be more Yeah. challenging, first of all, and second of all, जो हमने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में देखा था, the war between dark side and the people from Atlantis, the land people, water people and sky people, जो हम लोग ने देखा था, that was just a mere reflection of what is going to occur in the future. वो तो खैर एक ही यूनिवर्स में था, एक ही अर्थ पे था, जो कि हम बोल सकते हैं दे जस्ट फ्लू अवे फ्रॉम द अर्थ टू गेट मोर पावरफुल। मैं डार्क साइड का बात कर रहा हूँ, दे फ्लू अवे फ्रॉम अर्थ टू गेट मोर पावरफुल एंड कॉन्कर बैक इट अगेन। सो हाँ वो तो था, एंड एज शौविक सेड कि मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब जो लास्ट सीन था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टीफन वुल्फ का जो सर काट देता है जल गैडोट, और उसके बाद वो पोर्टल के थ्रू जाके डार्क साइड के पैर के सामने गिरता है, और डार्क साइड अपने पैर से वो हेड को क्रश कर देता है, और वो देखता है और बोलता है अपने पीछे ग्रैनी गुडनेस को कि प्रिपेयर द आर्माडा, आई एम गोइंग टू अर्थ। तो ये जो बात है, ये इसका अगला जो सीन होने वाला है वो सीन ही हम लोग देखने को मिलेगा इन द 10 ईयर प्लान, की जहाँ पे डार्क साइड अभी अकेले नहीं आएगा, और अकेले एक अर्थ कॉन्कर करने नहीं आएगा, वो आएगा पूरा टाइमलाइन या पूरा मल्टीवर्स कॉन्कर करने, और विथ इज मोर पावरफुल ट्रूप्स एवर एंड एज वेल एज एंटी-बॉन्टेड। तो ये तो होने वाला है कुछ। तो शौविक ने जो कहा था एंड गेम लेवल, तो मैं तो बिलीव करता हूँ अगर ये हो जाए, अगर क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के बेस पे अगर ऐसा कोई मूवी निकल आए जो कि एंड गेम के लेवल का हो, तो मैं तो श्योरली ये कह सकता हूँ कि इट वुड बी मच बेटर, मच हाइप। गेम का लेवल का नहीं होगा, गेम से ऊपर से ही होगा, एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाहता था कि अगर जो गेम में जो था वो इससे पहले और से बहुत सारे मूवी आने वाले हैं, जस्टिस लीग का भी कोई मूवी आने वाला है 2025 से 26 में, जो कि एंड लेवल मतलब एंड गेम लेवल का कुछ इवेंट उसमें भी होने वाला है, क्योंकि मेन अगर लोगों को मैं हाइप करना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि जो फ्लैश आने वाला है 2023 में, वो भी नियर अबाउट इन्फिनिटी वॉर का लेवल का हो सकता है, क्योंकि वहां पर पूरा टाइमलाइन चेंज हो रहा है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को शौविक नहीं दिख रहा है, मगर मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि दैट वुड बी जस्ट mere रिफ्लेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी वॉर, द फ्लैश मूवी, और मियर भी नहीं हो सकता है, मतलब वी डोंट नो what is coming there or what is there, so वो बहुत ही greater हो सकता है, बहुत ही large हो सकता है, huge हो सकता है, more than the concept, the imagination of Infinity War भी हो सकता है। तो यही था। तो शौविक तो आ चुका है हमारे साथ वापस। मैं जो बोल रहा था शौविक की, जो फ्लैश मूवी आने वाला है इन्फिनिटी, जो कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे इन्फिनिटी वॉर, तो मुझे लगता है दैट कैन बी मोर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। अगर हम लोग देखें तो इट कैन बी मोर देन इन्फिनिटी वॉर, द इमेजिनेशन को लेके, क्योंकि यहाँ पर बहुत से यूनिवर्सेस कनेक्ट हो रहे हैं टुगेदर टू क्रिएट अ मल्टीवर्स। इसमें बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मूवी में मतलब फ्लैश जो मूवी वाला है, यहाँ पे देयर विल बी लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, मतलब लॉट्स ऑफ हीरोज एंड स्टाफ्स एंड पीपल्स एंड पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू डाई इन दिस मूवी, और इसके लिए ये मूवी इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें सबको बचाने के चक्कर में फ्लैश एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर चुका होगा गलती से,
तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मूवी कि ये मूवी इतना इम्पैक्टफुल होगा जहाँ पे बहुत सारा कुछ होने वाला है, और बहुत सारे टाइम ट्रेवलिंग, मल्टीवर्स, ये वो, माइकल कीटन, बेन एफ्लेक, हेनरी कैविल, गैल गैडोट, और सब कोई होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी जनरल जॉर्ड भी होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग मरने भी वाले हैं, शायद मर भी जाए, या फिर ना मरे तो वो लोग उन लोगों को बचाने के चक्कर में फ्लैश एक नया टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट की वजह से ये मूवी इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मूवी एक 10 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ डीसीयू के तौर पे आएगा, कि 2013 में लास्ट मूवी आया था मैन ऑफ स्टील, उसके बाद ये मूवी आ रहा है 10 साल बाद। तो ये मूवी जो है एक नया टाइमलाइन, नया बार, नया प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए बाकी 10 साल लग जाएंगे डीसी को, जो कि वो लोग 2023 को शायद रैप अप करे विद द क्राइसिस ऑफ इन्फिनिटी अर्थ, with all the superheroes reuniting from different multiverse, different timeline, one version, a different version of same superhero, maybe two Batman, five Superman, something like that, and one Flash, or maybe there can be more than one Flash also, different Flash from different Earth. So that is the thing, क्योंकि इसमें जो है फ्लैश मूवी में हम लोग जो जानते हैं अभी तक, ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश है, जो कि सीडब्ल्यू का फ्लैश है, वो भी आने वाला है। वी हैव ऑलरेडी सीन द मल्टीवर्स सीन इन ग्रैंड गस्टिन्स सीडब्ल्यू शो, जहाँ पे इजरा मिलर खुद आया था। ऐसे ही शायद फ्लैश में भी ग्रैंड गस्टिन आने वाला है, और ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लैश होने वाले हैं, जो कि जैसे कि जे गैरिक फ्लैश है, जो कि अर्थ 2 का फ्लैश है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, जिनको हम लोगों ने एज जस्टिस सोसाइटी मेंबर इन स्टारगर्ल सीरीज, वो भी शायद आ सकता है। और जो जस्टिस सोसाइटी का जो टीम है ब्लैक एडम में, उन लोगों का भी जो यूनिवर्स है, या शायद अगर वो सेम यूनिवर्स है स्नाइडरवर्स से, तो उस यूनिवर्स का भी जो फ्लैश है शायद वो इजरा ही है, वो भी आ सकता है शायद, या फिर और कोई भी आ सकता है। या फिर जब टाइमलाइन चेंज होएगा तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कि जब स्पीड फोर्स में आप घुसते हैं और निकलते हैं, उस टाइम पे जो फ्लैश का एक्टर है वो चेंज हो सकता है। मतलब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इजरा मिलर वाज सम काइंड ऑफ इन सम फाउल प्ले और समथिंग लाइक दैट, ही वाज एक्चुअली इन जेल, आल्सो देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो ये भी हो सकता है कि वो ऐसे स्टोरी को दिखाया जाए, क्योंकि ये कॉमिक बुक में हो चुका है कि व्हेन यू एंटर स्पीड फोर्स एंड व्हेन यू आर आउट इन गेटिंग आउट इनटू अ न्यू टाइमलाइन, न्यू फेज, देन एटलीस्ट द एक्टर कैन ऑल्सो चेंज। ऐसे भी हो चुका है सीडब्ल्यू में, कि एक बार ऐसा हुआ था कि एरो का जो एक्टर था वो फ्लैश बन गया था नया टाइमलाइन में एल्सवर्ल्ड स्टोरी में, और जो एरो का और जो फ्लैश का एक्टर है वो जो फ्लैश का एक्टर है वो एरो बन चुका था, जो एरो का एक्टर है वो फ्लैश बन चुका था। तो रोल रिवर्सल भी हो सकता है, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि जॉकिन फिनिक्स बैटमैन बन जाए और रॉबर्ट पैटिंसन जोकर बन जाए, ये भी पॉसिबल है। ऐसे भी कोई यूनिवर्स होगा जहाँ पे कि हाँ, शायद हेनरी कैविल पर विलेन है, एक जो बेसिकली बेसिकली स्विचिंग रोल्स, मतलब जो मल्टीवर्स है दैट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, एंड उसको कंसिडर अगर हम लोग करें तो बहुत से पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन जेम्स गन एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी हु इज डायरेक्टिंग, बिकॉज उनका कितना इमेजिनेटिव पावर है टू क्रिएट अ बिग ब्लास्ट ऑन द स्क्रीन। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी शौविक, हम लोग अगर कंसिडर करें तो 2023 में फ्लैश मूवी के साथ एंड ऑल ऑफ द अदर मूवीज के साथ हम लोग अगर रैप अप करें एक पूरा डिकेड को, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग 2033 में भी बहुत कुछ देख सकते हैं, इजंट इट? हाँ, एक फिर, और उसके बाद मल्टीवर्सल फेज शुरू करेंगे। तो यही था आज का मतलब डिस्कशन और द थ्योरी पार्ट। और जेम्स गन ने खुद भी कंफर्म किया है एक जगह पे कि एल्सवर्ल्ड स्टोरी भी आएंगे, इसका मतलब है कि हम लोगों को स्नाइडरवर्स का भी मूवी कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। शायद साइडर खुद वापस आ जाए टू डायरेक्ट सम मूवीज डाउन द रोड, मे बी बेन एफ्लेक का कुछ सोलो सीरीज या मूवी आ जाए, क्योंकि अभी एचबीओ मैक्स का जो सीरीज जो होने वाला है, जो एनिमेटेड मूवी होने वाला है, जो गेम्स होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स गन एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद द सेम टाइमलाइन। तो वो सब भी हो सकता है कि नया कोई सीरीज आ जाए, या शायद पीस मेकर का सीजन 2 आ रहा है, वैसे ही कुछ नया सीरीज आ जाए, या फिर कोई गेम आ जाए जिसमें शायद मल्टी जो जैक स्नाइडर का यूनिवर्स है स्नाइडरवर्स वो कंटिन्यू हो। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एल्स वर्ल्ड मूवी भी दे आर डेवलपिंग, लाइक द मूवीज ऑफ फिनिक्स जोकर एंड द मूवीज ऑफ द सीरीज ऑफ सैंडमैन। ये सब भी मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स है जो कि कनेक्टेड होगा डाउन द रोड। तो ये सब भी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट में रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक सिंगल टाइमलाइन जैसे कि पहले होता था थंडरबर्ड्स की टाइम पे, कि सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन ही मेन डीसीयू का पार्ट था, और डीसीयू के बाहर जो जितने भी सीरीज है या शो है वो सब कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन वी हैव ऑलरेडी सीन कि सीडब्ल्यू ने ये कनेक्शन कर दिया है ऑलरेडी थ्रू द मल्टीवर्स, और यही कंसेप्ट को आगे बढ़ाएगा डीसीयू, यानी कि डीसी यूनिवर्स, which is being created under James Gunn and Chris Claremont. So I am very much hopeful
और मुझे लगता है कि सीरू भी बहुत होपफुल है इस बात से। एब्सोल्युटली। और आई जस्ट यू गाइस आर इसी बात ऑल्सो। पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आई एम सीइंग इन सोशल मीडिया एंड एवरी अदर प्लेटफॉर्म कि बहुत सारे लोग जेम्स गन को हेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो रिकास्ट कर रहे हैं एंड ऑल। आई इन माई ओपिनियन आई थिंक शॉबिक वुड ऑल्सो अग्री कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। ही इज डूइंग इट और ही इजंट, वी डोंट इवन नो। मतलब वही कर रहा एक्चुअली है ही कि द एक्टर्स इज डूइंग, वी डोंट इवन नो। So the thing is या that instead of spreading hate, let's just hope कि ये कुछ और एक बड़ा चीज निकल कर आए and a blast comes out, isn't it? एंड वी ऑल नो कि जेम्स गन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जैक स्नाइडर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स गन जानबूझ के जैक स्नाइडर का अगेंस्ट में कोई बड़ा निकालने के लिए या आउट ऑफ हेट्रेड ही Exactly. इज कैंसिलिंग। एक्चुअली ही इज हैविंग अ मास्टर प्लान व्हिच ही वांट्स टू यूज। ही इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शंस complexity एंड प्रॉब्लम्स व्हिच विल बी सॉल्व वन डे एंड कंप्लीटली। और जब अगर वो पुल आउट कर सके जेम्स गन, तो ही विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ Exactly. इतना एग्जीक्यूशन। challenges के बाद अगर वो pull out कर दे तो he'll be the greatest. या तो दैट इज द थिंग कि जेम्स गन खुद अपना चैलेंज लेने के लिए तैयार है और हम लोग भी तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं वो क्या क्या बनाना चाहता है। अगर इट्स नॉट वर्किंग आउट देन डेफिनेटली वी विल कॉल एंड call him out and we will definitely do say give our opinion. But for the time being, DC universe always needed some base pillar, main pillar to build on, some connected interconnected movies to build on, solo movies, ताकि वो लोग जाके एक टाइम पे बहुत बड़ा कुछ कर सके, to create a effect like Marvel has already done. सो ये इसके लिए जेम्स गन का जो प्लान है वो वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। एंड आई ट्रस्ट जेम्स गन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड वन ऑफ द टू ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट movies and series of DC recent times, the Suicide Squad and Peacemaker. So I have faith in him because he has also made good stuff over the years, like Guardians of the Galaxy and Absolutely. this holiday special also he has made in Disney Plus Hotstar, Guardians of the Galaxy holiday special. That was also very heart soothing. तो जेम्स गन जो है उसके साथ बहुत सारे ऑब्सक्योर कैरेक्टर जैसे कि जो कैरेक्टर्स को बहुत पॉपुलैरिटी नहीं है, जो जिनको सब लोग जानते नहीं है, उनको भी Yes. बहुत लाइमलाइट मिलने वाला है। उन लोगों को भी बहुत अपना प्रोजेक्ट मिलेगा, जैसे कि प्लास्टिक मैन हो जाए या बूस्टर गोल या फिर कोई लोगो, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को और बहुत सारे हैं, जेट स्ट्रोक। तो इन सब को देखने के लिए, इन सब क्राइटेरिया को, पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हाउ द डीसी यूनिवर्स एक्सप्लोर। आई वांट टू सी हाउ द मेजर मेन इवेंट वर्क आउट। एंड अगर अच्छा हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं अच्छा हुआ तब वी विल डेफिनेटली से अबाउट दिस। बट डोंट बी नेगेटिव गाइस, स्प्रेड लव, बी हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर, and Absolutely. hashtag DC forever. And I sign out from my side. Now it's time for Shiruk to give his own thought and then the video will be over. एब्सोल्युटली नो, मेरा ऐसा स्पेशली कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं क्या हो रहा है डीसी के वो मतलब डीसी को लेके एंड द चेंजेस दैट दे आर मेकिंग। आई एज वेल एज शोविक बोथ होप फॉर द बेस्ट, एंड जो शोविक ने कहा टू मेक जेम्स गन इज मेकिंग अ मास्टर प्लान दैट ही विल एग्जीक्यूट, एंड इफ ही डज ही विल बी द ग्रेटेस्ट, एब्सोल्युटली नो डाउट। We just have to wait and see what goes on. So until we wait, today is the last day of this December 2022 that we are recording right now, and we will be coming, maybe it's like New Year पे first को release होगा ये video. So happy New Year to you all, and नया साल है, नया रिकंस्ट्रक्ट है डीसी का, मतलब नया नया तरह मतलब न्यूली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैशटैग डीसी फॉरएवर।